repeat it? What is the perception of your positive attitude, what it is, and what you can think that it has a role in your life? Yes, What is the importance of I'm it? not sure. Actually, positive attitude is the driving force for me. Mhm. Like, it is the main thing which drives me to do anything. You know what? You won't believe, just 5 minutes ago, I came to know that one of my very, very dearest colleague and a very dear friend just did something very bad against my back. And doesn't matter. और मुझे अभी पॉजिटिव एडिट का सेशन भी अटेंड करना था. मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मिट्टी पाओ. आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं what options do we have. And you know what, she is going to be a very like a very very strong partner in our group. Anyhow, that's what life is, we have to move on. That's very nice. Thank you, Dr. Sabha. You have given a really hand-on experience, what you have recently experienced. Very nice. So, no negative thoughts allowed. You have tackled this situation with that, whatever it is, मट्टी पाओ, हाँ. और ये मैं आपको बात बताऊँ, बड़ी इंटरेस्टिंग हमने एक वेबिनार लास्ट टाइम किया था, साइंस बिहाइंड स्माइल, और उसके अंदर हमने कहा था कि पाकिस्तानी पीपल आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स हैप्पीनेस बिकॉज दे थिंक देयर इज एन अ पावर एंड दैट पावर इज power of God which controlling the things, and there are certain things which are not under their own control. तो फिर वो क्या कहते हैं, मट्टी पाओ और आगे चल पड़ते हैं. That's very nice. Instead of blaming yourself, such type of thing, you thinking, I'm the reason, I'm the force, I'm all the reason of being blaming. So take it easy to move to the next level of your life. Why? Because that is most important thing in your life is your own life. There are certain things you have to do, different things in your life, and you are the hero of your life. You have to command your life in such in a way that it goes smooth. Not only go smooth, but also go and progress it. So it's really very important. तो इससे पहले कि हम इन डेप्थ में जाएं कि what the attitude is, we just have a little glance on it कि what the bad attitude can do with your own life. So bad attitude is like a flat tire. You won't go anywhere until you change it. It's the biggest hurt in your life कि अगर आपका attitude ठीक नहीं है, you can't go anywhere. You can't go anywhere. So, इतनी इम्पोर्टेंस होने के बाद एक हार्ट टचिंग सेंटेंसेस जो कि चार्ल्स विंडोल्स ने लिखे हैं, अमेरिकन राइटर्स हैं, उन्होंने एटीट्यूड को डिफाइन किया है और इतने बेहतरीन अंदाज से उन्होंने डिफाइन किया है. उनकी वर्डिंग्स को सुनते हैं, the longer I live, the more I realize the impact of attitude on life. Attitude to me is more important than facts. It is more important than past, than education, than money, than circumstances, than failure, than success, and what other people think or say or do. इसको थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास हर किस्म के पार्टिसिपेंट्स हैं, तो इसको थोड़ा सा मजीद इजी करने के लिए उर्दू में थोड़ी सी ट्रांसलेट कर देता हूँ कि चार्ल्स विंडोज ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जितना मैं इस दुनिया के अंदर रहता गया, मुझ पर पॉजिटिव एटीट्यूड के फवायद आश्कार होते गए और मैंने इस चीज को महसूस किया, इस चीज को पहचान लिया कि एटीट्यूड किसी भी फैक्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ये हमारे माजी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमारी एजुकेशन से भी ज्यादा अहमियत का हामिल है. हमसे हमारे पास कितनी रुपए पैसे हैं, कितनी वेल्थ है, कितनी जायदाद है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे एटीट्यूड की है. हमारा इर्द गिर्द माहौल कैसा है, हम कामयाब हैं या कामयाब हैं, इसका दारोमदार पॉजिटिव एटीट्यूड पर है. दैट व्हाट अदर थिंक और डू, दूसरे लोग क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉजिटिव एटीट्यूड है. दैट it is more important than appearance and giftedness. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पहनावे से और वो चीजें जो हमें बख्श दी गई और वो स्किल्स
जो हमें अल्लाह तबारक ताला ने दिए, इट विल मेक और ब्रेक ए कंपनी, ए चर्च, ए होम। एक बना सकता है और बिगाड़ सकता है एक कंपनी को, चर्च को, मस्जिद को, होम को, घर को। ये तमाम चीजें तो हमारे नहीं है, लेकिन एक स्ट्रिंग जो हमारे इख्तियार में है, दैट इज एटीट्यूड, द पॉजिटिव एटीट्यूड। और इसको हम तब्दील करके जिंदगी की खुशियों तक पहुंच सकते हैं। और आगे उसने कहा कि मैं इस पर कन्विंस्ड हूं, 10% ऑफ लाइफ इज व्हाट हैपेंड टू मी, इन 90% ऑफ द लाइफ how I react to it. So more important the things that you take the things, you perceive the things, you feel the things, and that is your angle, which is positive attitude. तो इस स्लाइड से हमें पता लगा कि attitude is everything. Everything is consist of attitude. It has an impact on everything. Attitude change everything. Why? Because it's just like in a magnified glass. We see what you want to see. Benefit of a positive attitude. Attitude के benefits क्या हैं? Positive thinking bring inner peace, success, improved relations, better health, happiness and satisfaction. It's empower us. So अगर आप थोड़ा सा देखें कि एटीट्यूड कितना इम्पोर्टेंट है हमारी जिंदगी में, सो नो स्फीयर हैज बीन लेफ्ट अनटच्ड। इसका अमल दखल हमारी जिंदगी के हर पहलू के ऊपर है, हर डायमेंशन के ऊपर है। वेदर इट इज अ रिलेशन, वेदर इट इज ओवर circumstances, whether it is money, it defines us how much we are happier and how much we are not happier. You can everybody can see that what the positive attitude, because it is being perceived. तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंस है एटीट्यूड के. So what the attitude actually is. Right. So participant, can you listen me? Okay. So what is attitude? State of mind or feeling with regard to some matter. It is a way, a perspective you look to the world, frame of mind. Optimism is a very important part of our attitude, and it is a tendency to expect the best possible outcome or dwell on the more aspect of a situation. अगर साइकोलॉजी से डायमेंशन को अगर हम देखें और अगर इसकी बातों को हम इस्तेमाल करें तो कहा जाता है सेल्फ एफिशिएंसी. सेल्फ एफिशिएंसी क्या है? दैट योर बिलीव दैट यू कैन डू इट, your belief that I can do it, I can achieve it, I have the abilities. God has created this world within all the abilities in this world, and I'm the one that can make changes. यहाँ पर एक बड़ी जबरदस्त आपके साथ शेयर करते हैं एक थ्योरी को, जिसका नाम है कॉकरोच थ्योरी. So the main theme is this cockroach theory is कि do not react in life, always respond. ये बेसिकली एक स्टोरी है एक रिसर्चर की जो कि एक रेस्टोरेंट में जाती है. रेस्टोरेंट में जाने के बाद वो बैठी होती है बड़े इत्मीनान से, तो अचानक क्या देखती है कि एक कॉकरोच उड़कर जो है एक लेडी के ऊपर जो है वो चढ़ गया. जैसे ही कॉकरोच उसके ऊपर चढ़ा, उठी, कूदना शुरू कर दिया उसने, और कॉकरोच से जो है ना घबरा कर उसने ना सिर्फ इतनी परेशान हुई बल्कि दूसरे टेबल पर गिरी और वहां की चीजें नीचे गिर गई. यहां तक कि वो कॉकरोच वहां से उड़ा और एक दूसरी लेडी के ऊपर चढ़ गया. और ये ड्रामा उसके साथ भी उसने भी शुरू कर दिया. वो भी घबराई, परेशान हुई, उसने उछलना शुरू कर दिया. इन द मीन टाइम जब ये शोर शराबा सुना हेड वेटर ने, तो वो एंटर हुआ, तो वो कॉकरोच उड़कर उस हेड वेटर के ऊपर भी चढ़ गया वो.
और हेड वेटर ने जब देखा कि कॉकरोच मेरे पर चढ़ गया तो बड़े इत्मीनान से उसने देखा, उसको एनालाइज किया कि वो किस तरफ मूव कर रहा है, और उस कपड़े से उसने पकड़ा और उसको फेंक दिया। तो रिसर्चर ने जब ये सारी सिचुएशन देखी तो उसने एक थ्योरी निकाली जिसका नाम है कॉकरोच थ्योरी। तो उसने जो मेन थीम इसके अंदर दी वो ये दी, डू नॉट रिएक्ट इन लाइफ, ऑलवेज रिस्पॉन्डेड। अगर वो ख्वातीन जिनके ऊपर वो कॉकरोच चढ़ा था, अगर वो उसे सही तरीके से रिस्पॉन्ड करती, इत्मीनान से सुनती, इमोशनल इंटेलिजेंस का मुजाहरा करती और उसको देखती, तो यही गलती रिसर्चर ने कहा हम अपनी लाइफ के अंदर करते हैं। बहुत से मसले, बहुत से प्रॉब्लम हमारी लाइफ में दाएं बाएं होते हैं, और देयर ऑलवेज something will be happen to check our positive attitude. How positive we are always happen with us to check it. और वी हैव टू रिस्पॉन्डेड कि आया कि हम उस लेडी की तरह घबरा जाते हैं या और उस वेटर की तरह बड़ी खुश असलूबी से उसका मुकाबला करते हैं। तो दिस इज डिफाइन ओवर पॉजिटिव एटीट्यूड, हाउ वी रिएक्टेड बेसिकली। According to Stanford psychologist Carol Dweck, some individuals have a fixed mindset and believe that they cannot change their capacities. Other people have a growth mindset. So it is basically thing that कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में क्या सोचते हैं कि either you can change it or you can't change it. जो लोग ये सोचते हैं कि हम इसको तब्दील नहीं कर सकते, वी हैव बीन गिफ्टेड बाय द गॉड, बाय द अल्लाह तबारक तआला a fixed amount of positive attitude, and it is called the fixed mindset. Other people who think that this is under their capacity, they can change the attitude, they have got a growth mindset. नेपोलियन हिल ने एक शुरा इफाक किताब लिखी, ग्रीन एंड, और उसमें उसने बड़ी खूबसूरत अंदाज के अंदर इस चीज को एक्सप्लेन किया कि वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट, इट कैन अचीव इट, एंड द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम. So it's basically our mind, our capabilities, our thinking, our perception, what we think it. Once you accept the positive attitude is a learned skill, you can learn it. If you think no, you have been devoted, you have been gifted with fix it, then it means you can't change it. So first and foremost thing for a positive attitude is that you must think that positive is a learned skill. जब आप ये learned skill महसूस कर लेंगे, then the next step is how to change it. तो एटीट्यूड नजर कैसा आता है, एटीट्यूड के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? The flow from inside to outside. हकीकत जो एटीट्यूड होता है वो इनसाइड से आउटसाइड की तरफ फ्लो करता है. 90% of communication with yourself. बहुत मजेदार बात, एक बहुत मजेदार फिनोमेना, कि जो कम्युनिकेशन करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, इसमें 90% ऑफ द कम्युनिकेशन वो है जो हम अपने आप से करते हैं, और 10% ऑफ द कम्युनिकेशन वो है जो हम दूसरे लोगों से करते हैं. So the most important thing is that communication ओके चीज है जो कि लोग पिक कर लेते
the more you get. कैसे हम इसको अचीव करेंगे? Yes, we're moving to next slide. So ये एक वाज़े एक सोचों की तब्दीली का नाम है positive attitude. This is a new paradigm. It's a new frame of mind that you can cure it and you can see in the world. It's just like in a magnified glass कि जिसके अंदर आपको चीजें बड़ी होकर नजर आती हैं. वो ऐसी अच्छी चीजें जो आपकी लाइफ के अंदर हैं, you should see in bigger faces. और वो चीजें जो कि pitfalls है आपकी लाइफ के अंदर, you must see them small. में आपने देखा कि कुछ चीजों को आप बड़ा देख सकते हैं, उसी दूरबीन को आप उल्टा कर दें, ठीक है ना जी. फ्रेम ऑफ आई जब चेंज हो गया तो वही चीजें आपको शॉर्ट नजर आना शुरू हो गई, छोटा नजर आना शुरू हो गई, ठीक है. तो कोई भी आपके साथ मसला प्रॉब्लम है तो आप ये कह सकते हैं that this is things bad thing with me but I learned this thing instead of saying that I am idiot, I am stupid. So it's all about the frame of mind, how you think, perceive it, and how you take the things. So exercise it, eat it, and ignore the things. Ignoring the things are important. What? Unmuted. Unmuted. ठीक हो गया. Can you listen me? Hello? Hello? Should we change this voice mode from here to there? इसको ट्राई करें. Let's try. या उसको ट्राई करें. इसको ट्राई करें. Unmuted. Can you listen me? इशारे में से मुझे पता लग रहा है आपका. अगर रह सकता है. ये मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे पता लग रहा है ना कैसे चेंज हो रही है. मोबाइल के ऊपर दिया. So how positive attitude can be achieved? This is basically इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ा स्लो डाउन थोड़ा होता रहता है. पार्टिसिपेंट यू हैव टू लिव दैट ग्रेसफुली. हम साथ साथ मसाइल को रिजॉल्व भी करते चले जा रहे हैं. हाँ, how positive attitude can be achieved. अब हम टेक्निक की तरफ आ जाते हैं कि how positive attitude can be achieved. So one of the most important technique which is called flip side technique. Flip side technique, basically you add in a humor in your side. Instead of taking the life too hard, taking the things that are occurring to you, you let you down. You add in the humor side of your. I remember I was traveling in a car of my one of associate. तो क्या हुआ कि रास्ते में वो कार जो है वो फ्लैट हो गया, उसका टायर जो है. तो वो गया बाहर जाने के बाद उसने टायर को देखा और मुस्कुरा कर मुझे उसने कहा, सर आई ऑलवेज थिंक आई शुड स्पेंड मोर टाइम विद यू. Thank you for this flat tire. He is giving me a chance to talk with you more, to spend more time with you. शोरा इफ़ाक किताब हाउ टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड में एल्वुड सी चैपमैन एक लेडी है, उसका एक किस्सा बयान करते हैं. मिस मैरी जो कि ट्रैवल करते हुए जा रही थी अपने घर में क्रिसमस गुजारने के लिए. तो शी रियलाइज के बजाय मैं अपने घर की तरफ ट्रैवल करने के मैंने दूसरी साइड की ट्रेन पकड़ ली है एंड इन मूविंग एक्चुअली अवे फ्रॉम हर होम. ये सिचुएशन करने के बाद ही इज बेसिकली गो टूवर्ड्स द एडमन और एडमन से बताया कि ये यू हैव एक्चुअली सिट इन द रॉन्ग ट्रेन. शी टोल्ड ओके दिस इज गोइंग टू माय बेस्ट क्रिसमस अवे फ्रॉम होम इन द एडमन एंड ऑल द मैनेजमेंट ऑफ द ट्रेन इनसाइड द ट्रेन. सो दिस इज अ फ्लिप साइड टेक्निक. कोई मसला कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसके अंदर ह्यूमर जो है वो ऐड कर देते हैं.
तो बाज लोग जब नेगेटिव एटीट्यूड होते हैं तो व्हाट दे डू इट, एक टेक्निक लाती है वर्क इट आउट। तो बजाय बैठने के, बजाय लेटने के, बजाय जो है अपने आप को डिप्रेस करने के, वो काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना जी। और जब अपने आप को मसरूफ कर लेते हैं तो ये देखते हैं कि उनका फ्रेम ऑफ माइंड पॉजिटिव होना शुरू हो गया है। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड टेक्निक। बाद लोग जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं इट्स कॉल्ड स्पीक इट आउट। और जेंडर डिफरेंस में ये देखा है कि ख्वातीन and ladies and females and feminists are more good in speaking it out, right? So it's being more fluent. So instead of going to like that, you must see like that, speak it out. अगर आपको कोई मसला, कोई प्रॉब्लम जिंदगी में ऐसा आ गया तो बजाय वो तमाम बोझ अपने पे लेने के, why not to have an supportive network of your friends, of your family, tell that this is the problem. जितना शेयर करेंगे उतना आता, लेकिन ऑलवेज थिंक जिन लोगों के साथ आप शेयर कर रहे हैं they should have got positive attitude, not the negative attitude. तो अपने आप को उतना ज्यादा रिलैक्स महसूस कर लेंगे. One of the surest way to have a lot of love in your life is called supportive network. The more people you have in your life, more happier you are. डुर्मिट ने एक रिसर्च की, उसने देखा कि वो लोग जो कि इंट्रोवर्ट होते हैं उनमें से शराय मवाद ज्यादा हैं और उनका रुझान टुवर्ड्स खुदकुशी ज्यादा है बजुज उन लोगों के जो एक्सट्रोवर्ट हैं. एक्सट्रोवर्ट लोग कौन होते हैं? जो कि अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो अपने इर्द गिर्द लोगों का मदद करते हैं और मदद रिसीव करते हैं. इट्स मोर इंपॉर्टेंट टू बी ए extrovert. One of the surest way to have a positive attitude is called imaging and visualizing. In order to succeed, you must see yourself approaching a difficult challenge with poise and confidence. Visualization को हो सकता है कि बाद लोग ये कहें कि विजुअलाइजेशन दिन के अंदर ख्वाब देखने के मुतरादिफ है, लेकिन वो लोग जो अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, अपने अच्छे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ ताने बाने बुनते रहते हैं और अपने फ्यूचर को विजुअलाइजेशन के जरिए बेहतर अंदाज में देखते हैं, दे आर मोर पॉजिटिव as compared to those people who don't visualize themselves. विजुअलाइजेशन करने से बड़े बड़े मसले छोटे नजर आना शुरू हो जाते हैं और आपकी तक शख्सियत का कद इतना बड़ा हो जाता है कि आप उन पर तेज तेज कदम करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं. The next technique which is to use to gain the healthy positive attitude is called read inspiring stories. Manage time to read the stories of the heroes who were nothing in the start but got the success through the positive thinking. बेशुमार स्टोरीज हमारे इर्द गिर्द हैं. इमरान खान से जब ये कहा गया कि भाई आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, आप जो हैं आप पॉलिटिकल अरीना में अपनी जगह नहीं बना सकते, तो उसने कहा कि नहीं. बाद लोगों ने कहा आप तो क्रिकेटर हैं, आपका सियासत से क्या लेना देना. तो उसने पॉजिटिव एटीट्यूड का मुजाहरा करते हुए कहा कि नहीं, मैं लोगों को वो रोशनाई तो कम से कम दिखा सकता हूं जिस पर वो चलकर आने वाले दिनों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, पॉलिटिकल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं. इसी तरीके से एडी से जब ये कहा गया कि भाई आप तो बहुत सादे आदमी हैं, आपसे तो तकरीर भी नहीं होती, लोगों को कन्विंस भी नहीं कर पाते और आप तो टीवी पर इंटरव्यू भी अगर दें तो आप सही अंदाज से इंटरव्यू भी नहीं दे पाते, तो आप ये क्या एनजीओ के चक्कर में पड़ गए हैं. अगर आप खड़े हो जाएंगे लोगों से पैसा मांगने के लिए तो कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा. तो उसने कहा कि नहीं, मेरे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है, मैंने अपना एक विजन बनाया है, उस विजन को पा के रहूंगा. इसी तरीके से थॉमस एडिसन जब 5,999 दफे फेल हो गया बल्ब इजाद करने के लिए, तो उसके असिस्टेंट ने कहा कि लाखों रुपया खर्च करने के बाद हम बल्ब इजाद नहीं कर सके, अब हमें एक्सपेरिमेंट रोक देने चाहिए. तो थॉमस एडिसन ने उस वक्त जो बात कही वो कामयाब लोगों के लिए मशले राह है. उसने कहा
कि हमने 5,999 वो तरीके सीख लिए हैं जिनसे बल्ब इजाद नहीं होता, और 6,000वें एक्सपेरिमेंट के बाद बल्ब इजाद हो गया। तो कॉन्स्टेंटली काम करते हुए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी जिंदगी को आगे ले जाएं। एक स्टोरी ली डी फॉरेस्ट की है कि जब उसने ट्रायोड ट्यूब्स बनाई तो उसने ये दावा किया कि इस ट्रायोड ट्यूब के बल्ब होते के ऊपर टेलीफोन बनेगा, और वो टेलीफोन की आवाज एक बड़े आजम से दूसरे बड़े आजम तक बनेगी। तो उस वक्त के अटॉर्नी जनरल ने उसके ऊपर कहा कि तुम फ्रॉड कर रहे हो अपने स्टॉक बेचने के लिए, और उसे पब्लिक ह्यूमिलेट किया। लेकिन सारी दुनिया जानती है कि उसके टायरॉड्स ने बल्ब इजाद कर दिया। इसी अंदाज से यंग कार्टूनिस्ट वॉल्ट डिज्नी ने मिकी माउस को देखते हुए बहुत बड़ी अपनी एम्पायर बनाई, और इसी अंदाज से आगे बढ़ते हुए राइट ब्रदर्स ने जो है हवाई जहाज बनाया, जब तमाम लोग ये कह रहे थे कि ये मुमकिन नहीं। एक दूसरी टेक्निक जो है वो ये है कि राइट ए ग्रेटिट्यूड जर्नल। ग्रेटिट्यूड जर्नल बेसिकली क्या है? ग्रेटिट्यूड जर्नल ये है कि आप रोज रात सोने से पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें, और एक जर्नल बनाएं जिसके अंदर तमाम वो चीजें लिखें जो अल्लाह ताला ने आपको ब्लेस की हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतनी खूबसूरत बॉडी दी, आंखें दी, ज़हन दिया। यू आर यूनिक, यू आर मैचलेस, you have own place in this world, and God don't do nonsense. You have been in this world with the approval of God. Have some mission, have some goals in your lives to make you unique. Always focus on your potential, not your limitations. नेक्स्ट टेक्निक की तरफ हम मूव करते हैं जो कि पॉजिटिव एटीट्यूड को केयर करने में मदद करती है, कि कॉप विद रिजेक्शन। जब एंथोनी रॉबिन्स ने अपनी शोरा इफाक किताब लिखी अनलिमिटेड पावर्स में, तो उसने कुछ टेक्निक्स लिखी जिसमें सबसे टॉप पर उसने टेक्निक लिखी, हाउ मेनी नोस यू कैन टेक्स। कितनी रिजेक्शन आप बर्दाश्त कर सकते हैं? यू आर वट एवर, हाउ मेनी नोस यू कैन। ही एक्सप्लेन नो मीन नॉट नो, नो मीन्स नॉट ओवर। तो हमने सेल्स में देखा कि वो सेल्समैन आर द मोस्ट important and most successful salesman who can take no's. सगीर अहमद साहब की मैं एक वेबसाइट देख रहा जो कि माने ग्रामी हमारे सेल्स ट्रेनर हैं, तो उन्हें बड़ी खूबसूरत बात जो है अपनी फेसबुक पर आउटलिक की हुई थी। उन्होंने कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े सेल्स ट्रेनर्स सबसे ज्यादा ट्रेन प्रोस्पेक्ट्स, कस्टमर प्रोस्पेक्ट्स को विजिट करते हैं, सबसे ज्यादा नो को फेस करते हैं, और इसके बदले में उन्हें सबसे ज्यादा सेल्स क्लोज करने का मौका मिलता है। इसी चीज को अगर दूसरे अंदाज में लिखें तो एक स्कॉलर ने बहुत अच्छी बात की, इफ यू वांट टू सक्सेसफुल मेक योर फेलियर्स डबल। द मोर यू आर नियर टू द गोल, द मोर ट्राई यू can face it, because the timber do not grow with ease. Stronger the wind, stronger the techniques. Another very most important technique of positive attitude is surround yourself with happy people. Robin Sharma is one of the most top trainer of the India. वो हर ट्रेनर जो है साल के एंड में कोई ना कोई अपनी टिप्स निकालता है। उन्होंने एक साल के एंड में एक टिप्स निकाला। उन्होंने कहा कि अगर आप सिर्फ एक काम कर लें पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करने के लिए, कि पॉजिटिव लोगों के दरमियान रहना सीख जाएं अगर आप, और अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों को रखें, तो यू विल फील यू आर मोर पॉजिटिव एंड मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स सक्सेस. Set a goal to make someone smile. Why? Because smile is a thing which make you happy. और अभी हमने देखा the characteristic of the positive attitude. Smile is a thing which positive attitude is a thing which come from inside to outside. अगर आप अंदर तौर पर खुश हैं तो बाहर तौर पर ही खुश हैं. Always smile. Give your smile to others. The world is better place when you smile. If you don't have a smile, I will give you one of mine. जिस तरीके से खुशबू बांटने वाले से सबसे पहले
खुशबू उसके हिस्से में आती है, इसी तरीके से स्माइल बैठने वाले से सबसे पहले खुशी और पॉजिटिव एटीट्यूड उसके पास आता है। हैप्पीनेस के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये देखा कि अगर हम कंटिन्यूस स्मॉल ट्रीटमेंट करें और कंटिन्यूसली छोटी छोटी खुशियों को जमा करना शुरू कर दें तो हम बड़ी खुशियों तक पहुंच सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द वे कि हर चीज अपने दाएं बाएं देखें क्या चीजें आपको खुश रख सकती हैं और उनको हासिल करने की कोशिश करें। One lesson that you will learn in every webinar of the Megavision training, I call it the best enjoyment winning in the world, and that is winning is from yourself. आप अपने आप से जीत सकते हैं, पूरी दुनिया से जीत सकते हैं। Always set in a small goal for yourself. You want successful in your life. अच्छा, एक जो बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराडाइम है जो कि आज सामने आ रहा है वो है स्पिरिचुअल लिंकेज। स्पिरिचुअल लोग जो रूहानियत वाले लोग हैं वे चीजें महसूस करते हैं इंटरकनेक्टेड वे में एक कनेक्शन उनका अल्लाह उनकी शख्सियत में एक बहुत बड़ी चेंज आ जाती है। That change is very positive change. And that change is basically they feel that they are basically the creature of the God having mercy on them. अपने स्पिरिचुअल लोगों को स्पिरिचुअल लीडर को देखना होगा के अंदर एक रोब होता है, उनके चलने फिरने में एक रोब होता है because divine power universe of God. The more you are close to Allah, the more positive you are. क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी करने से इंसान परेशान ही रहता है, बादशाही क्यों ना बन जाए। अल्लाह को राजी करने से इंसान रहता है, हीरी क्यों ना बन जाए। So having a deep connection with God, and you will feel that you are more related, more happy, more positive. So let's end our with the story of Mr. Akram. एक शख्स था जिसका नाम basically working in Faisalabad. लेकिन जब वो घर में आया तो उसकी बीवी ने उससे पूछा कि आप I have no more with the company, वो बंद हो गई, ये हालात पैदा हुए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर। So he was also being laid off. So बहुत डिप्रेस था, बहुत ज्यादा परेशान था। तो उसकी बीवी ने कहा कि आप फिक्रमंद ना करें, अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए कोई और नया रास्ता निकालेगा। तो उसने पूछा कि हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट है। उसने कहा मेरे पास सिर्फ 5 लाख रुपए हैं और कुछ भी नहीं है। मैंने कहा अच्छा, ये 5 लाख रुपए हैं, इसको हम कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे। बहरहाल क्या हुआ कि दूसरे दिन वो सुबह उठा तो बहुत बेचारा परेशान था, वो बैठा हुआ था। अचानक उसके दरवाजे पर दस्तखत हुई, उसने जाकर खोला तो देखा उसका बचपन का दोस्त वहां सामने खड़ा हुआ। उसको अंदर लेकर आया, ड्राइंग रूम में बिठाया, उसको पानी वगैरह पिलाया। उससे पूछा क्या बात है, क्यों आए, तो क्यों परेशान नजर आ रहा है। उसने कहा कि मेरे वालिद साहब के गुर्दे फेल हो चुके हुए हैं, यहाँ लाहौर में हॉस्पिटल में उनको ले आए हैं और हमारे पास कोई पैसे नहीं है, जितने पैसे थे वो लग चुके हुए हैं, अभी उनको ऑपरेशन करने हमें कुछ पैसे दरकार है और वो 5 लाख रुपए हमें चाहिए। तो उसके ऊपर उसने कहा कि अच्छा 5 लाख चाहिए। वो सीधा गया अपने बेडरूम में जहाँ पर उसकी बीवी बैठी हुई थी। उसने कहा कि जिस इन्वेस्टमेंट का तुम जिक्र कर रही थी, इन्वेस्टमेंट अल्लाह तबारक तआला हमारे पास भेज दिया, वो 5 लाख रुपए तुम मुझे दो, वो मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ अपने दोस्त के पास। उसने वो 5 लाख रुपए दिए, उसको दोस्त को दिए। उसने कहा कि जाओ, अल्लाह इंशाल्लाह ताला बेहतर करेगा। खैर वो चला गया उसका दोस्त। तो रात को वो बैठा हुआ था, उसको एक मेल आई तो देखा, तो मेल खोली तो देयर वाज मिस्टर रॉबर्ट। ओ मिस्टर अकरम, आप कहाँ थे इतने अरसे से, मैं कब से आपको तलाश कर रहा हूँ। फिर फलाने दोस्त से रात ही को मुझे पता लगा कि आपकी ईमेल क्या। उस फलाने दोस्त मैंने ईमेल लिखी कि यहाँ मैं आपको बेसिकली रिसोर्स पर्सन बनाना चाहता हूँ और यहाँ पर हम लोग जो है वो चीज़ें इंपोर्ट करना चाहते हैं गारमेंट की, तो हम चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करें और हम आपको जो है ना तमाम इन्वेंट्री का जो है ना 1% देंगे। तो मिस्टर अकरम ने जब बहुत बड़े वो बन गए, रेल फेल हो गए, तो उन्होंने बताया कि उसका 1% जो उस एक लॉट का था वो मेरी जो है कई साल की सैलरी से भी ज्यादा था। तो
जब वो कहने लगे कि मैं 5 लाख रुपए उसको दे रहा था, तो उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम जो है वो हरकत में आ रहा था और मिस्टर रॉबर्ट को अल्लाह तबारक व तआला मेरे से थ्रू वो करवा रहे थे. So my friend, having a strong faith on Allah Tabarak Ta'ala, it's not always the science, cause and effects. There is one most important power in this universe, and that is your spirituality. How much you close you are, how much positive attitude you have. So my dear friends, this is basically the end of today's webinars. Thank you very much indeed. आप में से अगर कोई क्वेश्चन आंसर सेशन करना चाहे तो he is welcome.